not a game, it's a rich thing. اسماعیل سارم اور سہرش کو موت کے گھاٹ اتار کر بھی اپنے تیش پر قابو پانے میں ناکام رہا۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ دونوں اس کے لیے آسان ہدف ثابت ہوں گے اور وہ اس کے مطالبات بآسانی پوری کر دیں گے، لیکن آخری لمحات میں سارم نے بازی پلٹ دی۔ اس کی ایک غیر متوقع حرکت نے اسماعیل کا دماغ الٹا دیا۔ سارم کی وہ حرکت دیکھ کر سہرش نے ایک بار پھر اس پر تھوک دیا۔ نتیجتاً اس نے دونوں کو عدم کا پروانہ تھمایا اور اسی تیش و وحشت کے زیر اثر مغیث اور شیزہ کے پاس چلا گیا اور انہیں یکے بعد دیگرے اسی طرح گھسیٹتے ہوئے باہر لے جا کر کرسی پر بٹھا دیا۔ مغیث اپنے اعصاب کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کاش تھوڑا سا وقت اور مل گیا ہوتا، یہ کمبخت چند منٹ لیٹ ہو جاتا تو میں اپنے پلان پر عمل کر لیتا۔ وہ کسی سوچ کے تحت جھنجھلا اٹھا۔ اس نے شیزہ کے ساتھ باہمی طور پر یہ منصوبہ بنایا تھا کہ وہ اسے پہلے ہی کی طرح کمرے میں باندھ دے گی اور اسماعیل کے آنے پر یہی تاثر دے گی کہ مغیث نے خود کو کسی طرح آزاد کروا کے اس سے اسماعیل کی آمد و رفت کا احوال معلوم کیا ہے اور تہخانے کا راستہ تلاش کر کے کچھ دیر پہلے ہی نیچے پہنچا ہے۔ اس دوران مغیث زیریں کمرے میں اسے چھاپنے کے لیے بالکل تیار رہے گا، لیکن اے بسائے آرزو کہ خاک شدہ، اسماعیل کی غیر متوقع آمد اور جائے آمد نے ان دونوں کے ہی منصوبے کو ادھوری موت بخش دی تھی۔ اسماعیل نے ان کے سامنے نشست سنبھال لی اور ایک بار پھر وہی کھیل کھیلنے کا آغاز کر دیا۔ مغیث کا تخیل کچھ لمحے قبل ہونے والے اس خونی کھیل کی جھلک بھی مساوی طور پر منعکس کرنے لگا۔ وہ پردہ سفر پر سارم اور سہرش کو بیٹھے دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ اس نے سارم کے انداز میں سوال کیا۔ میں ہوں اور تم دونوں کی بہادری دیکھنا چاہتا ہوں، اسماعیل نے بھی کسی حد تک اپنے انداز میں جواب دیا۔ بہت بہادر ہونا تم، اکیلے ہی اس اسیبی جگہ کی چیکنگ کرنے چلے ہیں، اب تھوڑی سی بہادری اور دکھاؤ تو مانوں تمہیں۔ وہ ایک توقف کے بعد اطمینان سے گویا ہوا۔ مغیث کا وجود سنسنا کر رہ گیا۔ یقینی طور پر سارم نے بھی ایسی ہی کیفیت محسوس کی ہوگی۔ کہو میں اول نمبر حرامی ہوں، اسماعیل نے پہلا مطالبہ کیا۔ ہاں وہ تو تم ہو، اول نمبر سے بھی پہلے نمبر کوئی ہو تو اس درجے کے حرامی ہو تم، مغیث نے بھرپور اطمینان سے جواب دیا۔ ذہن کے کواڑوں پر سارم کی بے بس آواز نے دستک دی جب اسماعیل نے اس کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے خود کو اس درجے پر فائز کر دیا تھا۔ اسماعیل بے قابو ہو کر اٹھا اور اس کے منہ پر گونسا جڑ دیا۔ درد کی ایک تیز لہر اٹھی اور اس سے حقیقی معنوں میں سارم کی ہمت کا احساس ہوا۔ کہو تم ایک بہت بڑے حرامی ہو، کہہ تو رہا ہوں کہ تم ایک بہت بڑے حرامی ہو، مغیث نے مزید پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ اسماعیل کا تیش سوا تار ہو گیا۔ اس نے مغیث کو بالوں سے جکڑا اور کھینچتا ہوا بٹی کے پاس لے جا کر بٹھا دیا۔ آگ کی تپش فی الوقت ایک حدت فراہم کرنے لگا۔ تاہم مغیث جانتا تھا کہ کچھ ہی لمحوں بعد یہ حرارت پہلے ناقابل برداشت شدت پیدا کرے گی اور پھر اس کی جلد کو جلاتے ہوئے چربی اور ہڈیاں پگھلانا شروع کر دے گی۔ بول، مغیث علی ایک لعنتی انسان ہے، اسماعیل نے اگلا مطالبہ دہرایا۔ ہاں، مغیث علی واقعی ایک لعنتی انسان ہے، اس نے بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ اسے اپنا ماضی قریب و بعید کے تمام سیاہ کارنامے مکمل طور پر یاد آ گئے۔ بول، میرے ماں باپ نے مجھے پیدا کر کے بہت بڑی غلطی کر دی، اسماعیل نے کہا۔ اس میں کیا شک ہے؟ تیرے ماں باپ نے غلطی نہیں، دھرتی کے ایک بوجھ میں ہی اضافہ کیا ہے۔ مغیث نے اطمینان سے ایک اور چوٹ کی۔ اسماعیل کا تیش اور زیادہ ہو گیا۔ اس نے مغیث کو کئی ایک ٹھوکریں نصیب کی اور جنونی انداز میں بولا۔ بول، تیرے ملک اور تیری شناخت پر لعنت ہے، اس ملک نے تجھے کچھ نہیں دیا، خدا اسے غارت کرے۔ بول، زندہ رہنا چاہتا ہے تو بول۔ میرے ملک اور میری شناخت پر مجھے فخر ہے، اس ملک نے مجھے کچھ نہیں دیا تو میں نے بھی اسے بے ایمانی، دھوکہ اور کرپشن کے علاوہ کیا دیا ہے؟ خدا اسے ہمیشہ سلامت رکھے تا قیامت قائم رکھیں، میرے ملک پر خدا کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں۔ مغیث کا لہجہ بلند ہو گیا۔ شیزہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ مجھے اس ملک سے پیار ہے، میں اور میرا مذہب یہاں بالکل محفوظ ہیں۔ اسماعیل کا چہرہ اور نقوش بگڑ کر رہ گئے۔ تیش اور نفرت اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب کرنے لگی۔ اسماعیل کا اصل نام در حقیقت جے کان تھا۔ وہ پڑوسی ملک کے اس تعصب زدہ طبقے سے تعلق رکھتا تھا جو پون صدی گزر جانے کے بعد پاکستان کا وجود اور حیثیت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نفرت اور تعصب کا یہ رشتہ کسی جنیاتی روح کی طرح اگلی نسل میں منتقل ہوا تھا۔ وہ پاکستان سے نفرت کرتے تھے اور یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ بھلا کیوں کرتے ہیں۔ اس نفرت کے رقم میں کوئی منطقی دلیل کار فرما نہیں تھی، یا یوں کہیے کہ تمام تر دنیا کو اپنی مٹھی میں رکھنے کے خواب دیکھنے والی سپر پاور نے انہیں دانستہ طور پر اس طرح کا مسافر بنایا ہوا تھا۔ جے کانت کو بھی علم نہیں تھا کہ اس تنظیم کے ڈانڈے اصل میں کہاں جا ملتے تھے۔ وہ صرف حکم کی تعمیل کرنے، اپنا دھرم نبھانے یہاں گزشتہ 2 سال سے موجود تھا۔ اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کے لیے استعمال ہونے والے اس کاٹیج میں اس کے بڑوں نے ہی ضروری تبدیلیاں کروا کر خوف کا ایک بھرپور ماحول تخلیق کیا تھا۔ اپنے اس سیٹ اپ میں جے کانت کے پیش رو اپنی تحلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ایسی تنصیفات اور لٹریچر مرتب کرتے تھے جو سراسر ملک اور قومی اداروں سے دشمنی پر مشتمل ہوتا۔ یہ لٹریچر شائع کرنے کا انتظام بھی زیر زمین کمرے میں ہی موجود تھا۔ اب یہ قباحت تھی کہ پرنٹ میڈیا نہایت
तेज़ी से तनज़ली का शिकार था, इसलिए असरी तकाज़ों को पेश नज़र रखते हुए 5th जनरेशन वार लड़ी जानी थी। अब यहाँ लिटरेचर शाया करने के बजाय सोशल मीडिया के जरिए कौमी इदारों के खिलाफ मुख्तलिफ तरीक़ों से हर्जा सराई की जाती है। नई नस्ल को इन इदारों से माइल बगावत ज़ाहिर करने के लिए फेक अकाउंट चलाए जाते हैं और अपनी नफरत और तअस्सुब का जहर कतरा कतरा उंडेल करके इस मुल्क को नस्ली, ज़हनी और इलाक़ाई तौर पर खोखला कर देना चाहते थे। ये सेटअप सिर्फ इस एक कॉटेज तक ही महदूद नहीं था, बल्कि हर कस्बे में जाने कितने ये काम सर अंजाम दे रहे थे। जावेद भी इस तरह मिशन पर था, जो बज़ाहिर एमन आबाद का एक आम रहायशी था, लेकिन दर पर्दा वो उनके लिए सहूलतकारी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते वक्त जयकांत को अंदाज़ा ही ना हुआ कि किस लम्हे वो जज्बाती कमज़ोरी का शिकार हो गया। इस मुल्क में रहते यहाँ के अवाम का कौमी इदारों पर एतमाद व मोहब्बत देकर इसे अपनी जद्दोजहद जाने क्यों रायगा जाती महसूस होती थी। अगर वो खामोशी से इस कॉटेज के ज़ेरे ज़मीन कमरे में पोशीदा रहकर अपना काम जारी रखता तो नताइज ज़्यादा शानदार हो सकते थे, लेकिन इसे जाने क्यों एक खलिश सताने लगी। अपनी इसी जहन कजी में वो ये बात फरामोश कर गया था कि अगर कॉटेज में आने वाले किसी भी शख्स से छेड़खानी ना की जाए तो किसी को यहाँ की बाबत का इल्म हो सकता था। लेकिन इस्माइल के दिमाग पर एक ही धुन सवार हो चुकी थी, वो इस जज्बे को मात देना चाहता था। वो एक बार इनकी कौमियत, शनाख्त, अस्करी इदारों और मजहब के खिलाफ कलिमात सुनना चाहता था। फयाज ने भी इस बात पर इनकार किया और जिंदगी की बाजी हार गया। अगर वो इसकी बात मान भी लेता तो मौत इस सूरत में भी इसका मुकद्दर ही थी। इस्माइल इसे बैरूनी दुनिया में बेचकर कॉटेज में अपनी ज़ात की वाबस्तगी कैसे आश्कार कर सकता था। बोल, तुझे अपने मुल्क की दिफा पर भरोसा नहीं। बोल, तेरे मुल्क का दिफा कमज़ोर है, वो तेरी हिफाजत नहीं कर सकता। इसके दिमाग में एक बार फिर वही सौदा समाया। मुईज़ ने अजियत से आंखें मींच ली। इसके अक्म में जलती आग अब नाकाबिले बर्दाश्त हिद्दत पैदा करने लगी थी। तहय्यल ने एक मरतबा फिर सारम की अजियत उजागर कर दी, जिससे इस्माइल ने नहायत क्रोफर से कहा, तू इस मुल्क की अकलियत बरादरी से ताल्लुक़ रखता है, तेरे लिए सब बोलना कहाँ मुश्किल है। चल बोल, तेरे मुल्क का दिफा कमज़ोर है, वो तेरी हिफाजत नहीं कर सकता। मेरा बड़ा भाई अस्करी इदारे के मेडिकल विंग से ताल्लुक़ रखता है, मैं इसकी मोहब्बतों की इज़्ज़त का गवाह हूँ। हमने भी इस इदारे का नमक खाया है, इस मुल्क का नमक खाया है, मैं ये सब नहीं कह सकता। सारम ने नहायत मजबूत लहजे में जवाब दिया। मुगीज़ को इस तरह खामोश और अपनी सोचों में उलझे देखकर जयकांत मजीद जंजला कर रह गया। इसने मुगीज़ को एक और ठोकर रसीद करके आग के करीब तर कर दिया। मुझे अपने और इस मुल्क के हर एक इदारे पर एतमाद है, भरपूर एतमाद है। मुगीज़ ने एक सिसकी भरकर जवाब दिया। जयकांत का चेहरा सुर्ख और नकूश मजीद मस्त दिखाई देने लगे। बोल, तेरा मजहब दहशतगर्दी सिखाता है, बोल, वरना तुझे इस वक्त जान से मार दूंगा। मुगीज़ के वजूद में एक शोला सा भड़क उठा। तहय्यल एक बार फिर सारम की बेबसी के मनाज़र दिखाने लगा। इस्माइल ने इससे भी अपने मजहब और इल्हामी हस्ती के मुतालिक हर्जा सराई का मुतालबा किया था, जिससे इनकार पर सहरिश को बेआबरू करने पर तुल गया था। सहरिश ने भी इसी मुतालबे के रद्द-ए-अमल में सारम को कुछ कहने से मना करते हुए इस्माइल के मुंह पर थूका था। इसके मुसलसल दबाव और सहरिश की बेबसी देखकर सारम ने भट्टी की तरफ रुख मोड़ा और अपनी जुबान और होंठ आग पर सींक दी ताकि वो कुछ कहने के काबिल ना रह सके। अपनी इस मौत के बाद इस्माइल ने इन्हें मौत के घाट उतार दिया था और यकीनी तौर पर इनका अंजाम भी यही होता। बोल कुत्ते, जल्दी बोल। इसने मुगीज़ को पे दर पे कई ठोकरें नसीब की। इसका जहनी तवाज़ुन बिल्कुल ही उल्ट चुका था। मैं, मेरी जान, मेरा माल, मेरी आल औलाद इन पर कुर्बान। मेरा मजहब अमन और सलामती का मजहब है। तू मेरे बदन से खाल उतार कर एक बोटी भी नोच ले तो इसके हर एक रेशे से तुझे यही आवाज़ आएगी, इस्लाम जिंदाबाद, लब्बैक या रसूलुल्लाह, मरहबा या रसूलुल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। मुगीज़ ने एक निगाह सारम के सोख्ता होंठों जुबान पर डाली और नहायत मजबूत लहजे में कहा। इस लम्हे वो लाओ बाली, बेनियाज शोहियाँ, शरारतें करता और नहायत छिछोरा लगने वाला लड़का अपने लिए अज़्म हिम्मत का एक इस्तारा महसूस हो रहा था। मुगीज़ की पुश्त पसीने से निचड़ चुकी थी, तपिश अब धीरे धीरे खाल की तरफ बढ़ने लगी थी। ऐसी सूरत में सारिम और सहरिश की लाशें से बर्दाश्त और साबित कदमी पर माइल कर रही थी। शिजा ने भी बआवाज़ बुलंद मुकद्दस आयात का विर्द शुरू कर दिया था। जयकांत ने एक कहर बरसाती नजर उन पर डाली, जरहाना अंदाज में शिजा की तरफ बढ़ा। मुगीज़ ने कर्ब और बेबसी से अपनी आंखें मींच ली। इसी लम्हे सारम की अजियत से मजीद शिद्दत से आवाज़ महसूस हुई। इसी लम्हे सारम की अजियत मजीद शिद्दत से महसूस हुई थी कि इसने अपने शरीक हयात की वो ऐसी आबरू किस तरह बर्दाश्त की होगी। जयकांत ने शिजा की रस्सियाँ खोली, वहशियाना अंदाज में इसे बेलिबास करने लगा। शिजा इसी लम्हे के इंतजार में थी। इसने अपने नेफे में उर्सा पिस्तौल निकाला और हाथों की लर्जिश पर काबू पाते ही जयकांत की गर्दन का निशाना ले लिया। लहू का एक फवारा उछला और शिजा के हाथों और लिबास को रंगीन कर गया। जयकांत के हलक से डकराती आवाज़ सुनकर मुगीज़ का आसाबी तनाव पहली बार कुछ कम हुआ। शिजा ने मंसूबे के दूसरे हिस्से पर बिलाहिर कामयाबी से अमल कर लिया था। इसके जहन के तय खाने में वो बात उजागर हो गई कि जब इसने वहाँ आतिशी और दाती हथियार देकर शिजा को एक पिस्टल थमाकर इसे इस्तेमाल का तरीका समझाया था। इसके जहन में इस वक्त यही नुक्ता था कि अगर वो इस्माइल को छापने में नाकाम होगा तो मुतबादिल तौर पर कोई ना कोई हथियार लाजमी होना चाहिए। मुगीज़ ने अपने पास भी 2 आतिशी हथियार रखे थे, लेकिन इस्माइल की यकदम आमद ने इसकी नौबत ही ना आने दी। मुगीज़ के इन हालात में फायर की दूसरी आवाज़ ने हल पैदा कर दिया। शिजा ने अपने सयाद को गोली मारकर इसका किस्सा ही तमाम कर दिया था। मुगीज़
की आंखों से तशक्कुर और न जाने किन जज्बात पर मुश्तमिल आंसुरवा हो गई। शहजाब लर्जीदा हाथों से इसकी बंदिशें खोलने लगी। हज़ां की रुत अपने अख्तामी मराहिल में दाखिल थी। मोहम्मद नगर के दूर अफ्तादा पहाड़ी इलाके में लकड़ी और पत्थरों की मखसूस साज से तामीर शुदा एक कमरे में कुछ बच्चियां अपने सामने किताबें, कापियां और पेंसिलें लिए बैठी थी। इनके सामने ढीले डाले अबाया और स्काफ में मलबूस शेजा तख्ता स्याह से कुछ मिटाने में मसरूफ थी। बच्चियां इसकी जानिब मुकम्मल तौर पर मुतवज्जे थी। वो अपने इस मौलमा को नरम मिजाजी और हमदर्दाना फितरत के बायस बहुत पसंद करती थी। इसी जगह से मुंसलिक एक और कमरे में बिल्कुल ऐसे ही अंदाज में चंद बच्चे बैठे थे। वो अपने शाइस्ता मिजाज और नरम खो उस्ताद मुगीज़ की जानिब मुतवज्जे थे। इसने रोजाना की तरह एक ही सवाल दोहराया। मुसलमान बच्चों ने यक ज़बान होकर जवाब दिया। कुछ ऐसी ही सदा लड़कियों के कमरे से बरामद हुई जहाँ शेजा भी मनोअन यही सवाल कर रही थी। हमारी शनाख्त क्या है? शेजा एक बार फिर सबका सवाल दोहराने लगी। हमारा मजहब और हमारा मुल्क। दोनों कमरों में मुतफरिक आवाज़ें बुलंद हुई। इस मजहब और वतन के लिए क्या कर सकती हो? मुगीज़ ने अपना मखसूस सवाल दोहराया। तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर सकती। दोनों अतराफ की आवाज़ों में एक नया जोश था। शाबाश, जिंदगी में सब कुछ भूल जाना, लेकिन ये बात कभी ना बोलना जिसम से खाल उतर जाए, हड्डियाँ बोटियाँ और रेशे रेशे अलग हो जाएं, लेकिन दिल से मजहब और वतन की इज्जत फरामोश ना करना। शेजा और मुगीज़ ने अदा करवाया। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। दोनों कमरों में इन आवाज़ों में एक वाज़ेह हरारत थी। स्कूल का वक्त खत्म हो चुका। मुगीज़ और शेजा सब कुछ समेटे अब अपने घर की जानिब गामज़न थे। आज ज़ुहैब का फ़ोन आया था मुझे। चंद कदम तय करने के बाद मुगीज़ को याद आया। शेजा किस बात पर? वो चौंक गई। ज़ुहैब मुगीज़ का एक दरीना दोस्त था। इसका ताल्लुक कानून नाफिज करने वाले एक इदारे से था। जयकांत उर्फ इस्माइल की हिलाकत के बाद मुगीज़ ने अपना मोबाइल फ़ोन और दीगर आलात बरामद करके वहाँ से जैमर्स हटाने के बाद सबसे पहले ज़ुहैब को ही फ़ोन करके इस वाक़े की इतला दी। ज़ुहैब ने इन्हें वहीं रुकने की हिदायत दी और अगले चंद घंटों में अपने 3 अहलकार के हमरा अहमदाबाद चला आया। इनमें एक अहलकार IT का माहिर था। इसने तहखाने में मौजूद कंप्यूटर सिस्टम हैक करके तमाम तर सबूत USB में मुंतकिल कर दिए। इसके बाद ज़ुहैब ने मामले की हसासियत के पेश नज़र इन्हें वहाँ से किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। देखो मेरे दोस्त, ये मामला तुम्हारी सोच से ज़्यादा गंभीर है। ये शख्स अपने जहनी फतूर के बायस से तुम लोगों पर एक्सपोज हुआ है, वरना ये बात तो तुम लोग भी जानते हो कि इन्हें इतनी कच्ची गोलियाँ खेलने के लिए नहीं भेजा जाता। हाँ भाई, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मुगीज़ बोझल सांस लेते हुए कहने लगा। तो फिर ये भी जानते हो कि हमारा दुश्मन का मुजरफ है। वो अपने नुकसान के जिम्मेदारान पर अपना तमाम तर गुस्सा और नफरत जरूर मुंतकिल करेगा। मैं रेस्ट हाउस से तुम्हारे शनाख्ती कागजात तुम्हें पहुंचा दूंगा। इन हाथून के साथ कहीं रूपोश हो जाओ तो बेहतर है। ज़ुहैब ने हलूस से कहा। लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? शेजा फितरी तौर पर घबरा गई। तुम मेरे साथ जाओगे, मेरे साथ रहोगी, हम सफ़र और हम दम बनकर। मुगीज़ ने मजबूत अंदाज में इसे मुखातिब किया। शेजा की आंखों में नमी दर आई। मुगीज़ इसके जवाब पर बिल्कुल पुरसुकून हो गया। क्या कह रहा था ज़ुहैब? शेजा ने अपने हालात से चौंक कर दरियाफ्त किया। इसी मामले के बारे में बता रहा था कि यह सिलसिला किसी कैंसर की तरह मुल्क के तूल अर्ज में फैला हुआ है। हालात मजीद अबतरी की तरफ माइल है। दुश्मन पूरी कुव्वत और शिद्दत से मैदान में उतरा हुआ है और हस्बे रिवायत पोशीदा रह कर ही वार कर रहा है। ये तो बहुत तशवीशनाक बात है। परवरदिगार वतन को सदा सलामत रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और इसे ता क़यामत ता सलामत रखे। आमीन। मुगीज़ ने भी सिद्क़ दिल से कहा। वो दोनों अब अपनी रिहाइशगाह में पहुंच चुके थे, इसलिए मैं मुगीज़ के दिल में सारिम और साहिरी से मुलाकात की ख्वाहिश में चल उठी थी। इसी पल रिवायती दुश्मन खुफिया तौर पर एक महसूस कमरे में मौजूद थे। वो तीनों अफराद अपने शोबे ज़िंदगी में कामयाब तरीन और नफरत और तासुब की दौलत से मालामाल थे। इनके सामने चंद कागजात मौजूद थे जिन पर दर्ज आदात व शुमार का इजाज़ा लेते हुए इत्मीनान और बेसुकून के मुतफर्रिक जज्बात में मुब्तला नजर आने लगे थे। प्रोग्रेस तो बहुत अच्छी है। इनमें से एक शख्स ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। वो उधेड़ उम्र और हशूनत ज़दा चेहरे का मालिक था। हाँ, इतिहास में पहली दफ़ा ये हो रहा है कि हमने इस तरह कामयाबी समेटी है। जदिया नामी दूसरा शख्स कहने लगा। लेकिन एक बात मुझे अब दिखाई जा रही है। तीसरे फर्द कंदन दास ने इन्हें मुखातिब किया। हम आखिर कब तक अपनी धरती माता के बेटे इन पर कुर्बान करते रहेंगे? मेरा ख्याल है कि अब समय आ गया है कि हम अपनी कामयाबियों को कैश कराएं। अपने एजेंट्स की गिरफ्तारियां और हलाकतें बहुत देख ली हैं। अब हम इनके हथियार इन्हीं पर चलाएंगे। अपने एजेंट्स वहाँ बेचकर इनके जीवन खतरे में डालेंगे। अब बस खत्म। अब हम इन्हीं के हथियार से इन्हें मात देंगे। इनके नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग इस तरह करो कि वो खुद ही अपने मुल्क और कौम के खिलाफ हो जाएं। राइट, 5th जनरेशन वार में कामयाबी हमें ही होगी। हम इन्हीं के हथियार से इन्हें मात देंगे। मुहत्ता ने जोर से कहा। जदिया भी नहायत मसरूर दिखाई देने लगा। इसके बाद वो तीनों अपने नए मंसूबे की जुजियात पर गौर करने लगे। शाम के साए गहरे हो चुके थे। मुगीज़ अपने कमरे में खिड़की में सिगरेट सुलगाए खड़ा था। इसके हाथ में सालिम का वो मोबाइल फ़ोन था जो अहमदाबाद से निकलते अपने हमरा ले आया था। मोबाइल के कुफल इसी रोज़ ही ज़ुहैब के दोस्त से हटवा लिए गए थे। मुगीज़ ने सिगरेट का कश लिया और सहरिश का रिकॉर्ड शुदा वो आखिरी व्लॉग देखने लगा जो उन्होंने कॉटेज में दाखिल होते वक्त बनाया था। इनके चमकते चेहरे, आंखों की शोही शरारत और मजमूई लाउबालीपन देख कर मुगीज़ इनके बारे में अपने साबिका तासरात पर एक मरतबा फिर शर्मिंदा होने लगा।
وہ انہی سرگرمیوں کے باعث انہیں چھچورے، احمق اور بے مصرف سمجھتا تھا، لیکن وقت نے ان کی ہمت و جذبے کا معترف ہی نہیں بلکہ معتقد بھی بنا دیا تھا۔ مجھے معاف کر دینا میرے دوستوں، میں تم لوگوں کو سمجھ کیوں نہ سکا، میں کیوں بھول گیا کہ انسان ہوا کتنا ہی بے نیاز اور اپنی زندگی کو الجھنوں میں پھنسا ہوا ہو۔ وطن اور مذہب کی محبت تو جبلت میں گندی ہوتی ہے، اس سے فرار ممکن ہی نہیں۔ جب تم جیسے لوگوں کا جذبہ اور محبت سلامت ہے، ہم اپنے دشمن کو مار دیتے رہیں گے۔ مغیث نے موبائل فون پر چمکتے چہرے پر محبت کی انگلی پھیرتے ہوئے خود غلامی کی۔ کھڑکی سے باہر رات کی تاریکی پھیلنے لگی تھی، کچھ ایسی ہی تاریکی وطن عزیز کی فضاؤں پر مسلط کرنے کی کوششیں بھی جاری تھی۔ اس تاریکی کو شہمات کرنے کے لیے ہمت و جذبے ابھی خوابیدہ ہی صحیح لیکن سلامت ضرور تھے۔